sex. So watch it patiently because 10 minute की film है, but this is the first film that goes out. Very challenging task for me as an actor, something I've never experimented with before. But he obviously has this aura of making everyone who surrounds him with a lot of cool and warmth. So you know that he's a really good to put out. I really miss Tarun at this point of time because we both also kind of bonded really well during the whole shoot. And thank you so much for this. Really nice work. But yeah, this is the first film, and it was a challenge. Because I turned up the shoot and I said, "Shooting, this is the scene." She said, "I want to kiss this idiot." I said, "No, there's not going to be any." And the reason I think she did it is very significant. And I think we had a discussion on the fact of consensual and non-consensual sex. If you read the law carefully, we are in big trouble. We have the youngest population on planet Earth. हमारे पास 600 मिलियन लोग हैं 25 की उम्र के नीचे. क्या ये लॉ समझते हैं? शायद नहीं. तो उसके लिए हमारे इसलिए एक रीजन था कि हमने इस फिल्म को पहले आपको दिखाया. इस सीरीज में अलग-अलग किस्म की फिल्में आएंगी इसके बाद, जो कुछ फनी की होंगी बहुत. Character हमारी फिल्म में सुरेश मेनन and he's played Gupta ji and whatnot. So there are many issues that we've addressed. Some are very intense and some are very light-hearted, but all of them start a conversation about sex. And sometimes the film has kids of 8-year-old onwards. Because, I think that is also something that's going on. So I think a round of applause for Shruti. They did a great job. And it takes a bit of guts to put out content like this. As I said, the future is digital. But right now, obviously, all of us contribute to make such films. It's not an easy ride to, go through this. Thank you. Any question for Shruti? Shruti ma'am, the acting in this film is very realistic and very nicely done. So, was it entirely the director's concept, or have you gone through this situation, or have you seen somebody go through this situation? This is entirely his concept, I must say. But the reason why it is so nice working with someone like SS, like we like to call him, is because it's not a teacher-student kind of relationship. We all sit together, we jam about what each of us think about a subject. I will bring on to the table what a woman's perspective would be to something like this. Tarun, whom we are missing today, would bring on something what a man thinks. He brings on something which is a lot more social. So I think this short film gives you three perspectives to sex. There is a woman's perspective, there is a man's perspective, and the society's perspective. And it puts a question mark onto each one of your minds as to what exactly determines such a word like rape. Because we kind of, I think, become a little desensitized to the whole issue without really understanding what all the law says. Like he said, what exactly it entails to be raped, or to have that somebody have that go through. So I think this kind of puts a new perspective to the whole subject itself. And for me, it was really challenging because I just felt that when he told me about this whole concept, I was like, "Yeah, ये तो कभी सोचा ही नहीं था." So for me, that was what was exciting and also challenging. And at that time, this was not such a complex issue in HR college. So, surprisingly, a girl did sort of threaten me. Because what happens is that when you're in an intense relationship in those days, you're not mature enough to understand the consequences. So, to be honest, most of my films have something that I've experienced or learned. And I don't impose that on the actor, as you noticed, and you correctly said. She was in the character, and she was actually performing it. At one point in time, we had a lot of arguments, but she's actually playing the role. To be honest, this is not happening in real life. This is inspired by true events. To be honest, Did you face anything opposition from the censors or anything? No, this is digital, so you're the only one tonight. That's it. This is the only screening I went through pain to put it here. So yeah, I mean, to be honest. But it's all for a digital platform. Because I think, please do understand, I'm not against any Bollywood movie, but a Bollywood movie when it doesn't work on cinema, मुश्किल से 2.5 लाख लोग देखते हैं उसको पूरे देश में. और इस किस्म की चीज़ 3 मिलियन 4 मिलियन लोग देखते हैं. 4 मिलियन 40 लाख लोग होते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है इसमें. हमारा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट एंड थ्रू एंटरटेनमेंट. आप सोशल मैसेज देंगे और बोरिंग तरीके से देंगे तो कोई यंगस्टर नहीं देखने वाला है. तो थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है उसे दिखाने के लिए. और डिजिटल का फॉर्मेट यूज किया है क्योंकि वो वायरल है और वो बहुत जल्दी जा सकता है लोगों के पास. इसका ऑब्जेक्टिव एक थोड़ा सोशल भी है और एंटरटेनिंग भी है. ज्यादातर ऑडियंस मीडिया से भी अपना
मोबाइल सेवी या नेट सेवी नहीं होता तो आप कितने दर्शकों को तक पहुंचना चाहते हैं? सर मैं आपको हमारी जाऊंगा नहीं, लेकिन आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि वी हैव द नाउ फाइनली द ऑफिशियल लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल इन द होल वर्ल्ड। आने वाला भविष्य तो आपने देखिए, आज आपको 250 रुपए का स्मार्टफोन लॉन्च हो गया। क्या चाहते हैं आप? 250 का स्मार्टफोन ले लीजिए आप, तो पूरी जिंदगी बदल गई। और क्या हो रहा है कि हमारे पास कम्यूटिंग में आपकी 60% जिंदगी आपकी कम्यूटिंग में जा रही है, ट्रैम में, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, बस में, टैक्सी में। तो वहीं आप एंटरटेनमेंट देखेंगे। आने वाले वक्त में आपके पास वक्त ही नहीं होगा। ये नेचुरली आई थिंक, जैसे श्रुति कह रही है कि जो हाथ से हमारे साथ बीतते हैं, जिस हाथों से हम सीखते हैं, फिर कहाँ से आती है? राजू ने कहाँ से निकालता है आइडिया? मुन्ना भाई का या कुछ भी बनाता है, कहाँ से आती है? जो आदमी अपने इंडिया से क्यों कभी हाईवे पे चला जाता है, कहीं और चला जाता है, क्योंकि वो जिंदगी जीता है वो। तो मैंने जो फिल्में बनाई है 10 की 10 सीरीज में, आपको कहीं ना कहीं मतलब हम लंबी बात कर सकते हैं उसके बारे में, कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, कहीं मेरे दोस्तों के साथ हादसे हुए हैं, तो मैंने रियल लाइफ सिचुएशन से उठाया ताकि ये पूरा फिक्शनलाइज ना हो और किसी किस्म का बैलेंस, रियलिटी और एंटरटेनमेंट का एक बैलेंस मेंटेन करा है। शैलेंद्र जी, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? क्योंकि विचार के स्तर पर बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन धन बिना आए तो आप प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते। करेक्ट। इसलिए मैंने बात करने के बावजूद मतलब मैं हम लोग बहुत देखते थे ना अनाउंसमेंट जो करते थे, मैंने भी 3-4 क्लिप बनाए थे, 70 रिलीज कर दिए थे, लेकिन इसलिए इस सीरीज की सारी 10 फिल्में कंप्लीट है। तो आपको हर हफ्ते एक फिल्म मिलने वाली है और आशा है कि इसका रेवेन्यू मॉडल बहुत स्लो है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आपका मोबाइल के साथ बात फ्री होगा जी, क्योंकि कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि आप कौन से नेटवर्क पे होंगे। वही जा रहे हैं हम लोग, आप फोटो डालते रहते हैं, फोन कब करते हैं, तो वही उसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग। उस वक्त रेवेन्यू की बहुत महत्वपूर्णता होगी और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाहर भी लार्ज मीडिया कॉर्पोरेशंस सब कंटेंट डेवलपमेंट में चले गए हैं डिजिटल के लिए। मतलब फिलहाल ये एक इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न इसका बाद में शुरू होगा। करेक्ट। मतलब जो प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं वहाँ हमारे कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप इस दोपहर में क्यों आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में? हम चाहते हैं कि हम आने वाले वक्त को पकड़े ना, इस वक्त को सब पकड़ के बैठे हैं। तो मेरा भी लक्ष्य हमेशा यही रहा है, चाहे वो मकड़ी बनाई हो निशान भारद्वाज के साथ उसकी पहली फिल्म, या यहाँ सुजी सरकार के साथ, या फिल्म में सलमान को मार दिया HIV के साथ, हमेशा विचार किया है कि चैलेंज करना है, आगे जाना है। शैलेंद्र जी, एक और प्रश्न ये है कि जो विषय आप लेकर के आए हैं, कहते हैं कि भारत में क्राइम, सेक्स और क्रिकेट बहुत बिकता है, लेकिन आपका अगर विषय कहें तो आप सरोकारों के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, तो पहले सेक्स को ही चुनना कोई विशेष उद्देश्य है क्या? कोई अशिक्षा भी बहुत सारी है, बहुत दहेज प्रथा भी है, तमाम तरह की कुरीतियां और परेशानियां हैं, तो सेक्स सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों लगा? क्या सेलेबल है इसलिए? कमर्शियल आंसर ये होगा कि मुझे तो सिखाया गया था बहुत पहले कि बॉलीवुड में 2 चीजें बिकती हैं, वो है शाहरुख और सेक्स जी। तो मेरे पास शाहरुख की डेट्स थी, मैंने सेक्स लिया, लेकिन मजाक वाला आंसर है जी जी, वहां नहीं जाएंगे। आई थिंक कि मेरी सोच सेक्स के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग और डीप है। मेरी पहली पिक्चर थी प्यार में कभी, अगर आपने कहीं देखी होगी, वो मुस्कुरासी गाना था उसमें, 176 डेरिवेटिव्स थे उस पिक्चर में जी। तो उस पिक्चर में क्या क्लाइमैक्स की HIV था, एड्स जी, और फिर मैंने सलमान खान की भी एड्स देखी। मैं बहुत पुराने वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, मुक्ति फाउंडेशन सुंदर ठाकरे की भी मैंने शुरू की थी। तो मेरे विचार ये है कि शुरुआत और अंत सेक्स से ही होता है। आपने वो पोस्टर देखा नहीं, जैसे कि पोस्टर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद उससे आपको इम्पैक्ट आएगा। वो एक कैजुअल पोस्टर नहीं है, नॉट दिस, दिस इज द नेक्स्ट पोस्टर। हां, या सो व्हाटएवर, ये जो पोस्टर है हमारी पैदाइश जहाँ से होती है वहीं हम पूरी जिंदगी जाने की कोशिश करते हैं। इसकी सोच ये है, आप इससे कुछ भी इंटरप्रेट कर लीजिए, मुझे तो लगता है यहाँ से हम पैदा होते हैं, यहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। मैं तो मतलब आई वर्शिप टू बी ऑनेस्ट इन माय माइंड, बहुत सुंदर, उनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं जी जी। और ये जो विचारों से मुझे लगता है कि शुरुआत सेक्स से होती है, पूरी जिंदगी सेक्स से चलती है, और जो आबादी है वो भी तो सेक्स से ही आती है। बिल्कुल सही बात। मुझे लगा कि ये टॉपिक इसको मैं पूर्ण बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल है, आपका जो कंटेंट है वो बहुत अप मार्केट है, मतलब मेट्रोपोलियंस का है, तो अगर आप भागलपुर जाना चाहें या आप बिलासपुर जाना चाहें या रायपुर जाना चाहें, तो वहाँ तो सेक्स के बारे में बात करते ही पसीना आने लगता है, करना तो बहुत दूर की चीज है। अरे ऐसा करना मतलब सबके सामने उस पर बात नहीं, उस पर बात करना सबके सामने बहुत दूर की चीज है। वाक्य पूरा होने से पहले क्यों आप सेक्स में कूद पड़े? शैलेंद्र जी, बात वही है कि मतलब आप कस्बों तक कैसे ले जाएंगे सेक्स का जो सत्संग है उसको।
नहीं, जो चीज़ें नोटिस की गई मेरे से, और मैं अभी कश्मीर और देहरादून इस जगह से आया हूँ, 12 दिन गुजारे मैंने जलंधर लुधियाना में, जो नजर आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खेतों में सरसों के खेत में रुक गए हम लोग, शॉट ले रहे थे, तो बंदा जो काट रहा था ना वो एसएमएस कर रहा था, और अच्छा खासा फोन था उसके पास। अभी की बात है, 4 दिन भी नहीं हुए, मेरे वोट अभी खड़े हुए सर्दी से। भारत कहीं और जा रहा है, और जो इंटरनेट की बात आप कर रहे हैं, जो पारिवारिक माहौल में हम सब शर्माते हैं, हम भी मतलब कभी अपना बोलना खोले अपने पिता और माता के सामने, लेकिन प्राइवेटली तो सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हैं। लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ पॉर्न इज इन इंडिया। जो लार्जेस्ट बोलते हैं वर्ल्ड में, लार्जेस्ट कहाँ से होगा? रायपुर, जबलपुर, मेरठ, लुधियाना से तो होगा, मुंबई से तो ना होगा। तो लगे हुए सब, लेकिन अपने अपने तरीके से लगे हुए। YouTube and you can